Moving on to next experiment, experiment number 2, refraction through a rectangular glass slab. Now we are going to perform our experiment number 2, refraction through a rectangular glass slab. So all of you know that refraction is a process in which when a light enters from one medium to another medium, it bends in the other medium. For example, when a light ray will enter from a rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal, and when it will go away from the denser to rarer medium, and when it pass from the denser to rarer medium, it will again bend away from the normal. From rarer to denser, it bends towards the normal. From denser to rarer, it bends away from the normal. So this is the process. This is known as refraction of light. This is known as a refraction. So why the refraction occurs? So actually the speed of light in different medium is different. If the optical density of a medium increases, the speed of light decreases up to some extent. So moving on to the higher optical density, the results in the decrease in the speed of the light in that medium. As a result, there is a slight variation in the speed of light, and it shows a slight bend. It shows a slight bend while entering from one medium to another medium. So in this experiment, we are going to we will take a rectangular glass slab, and all of you know that whenever the light ray from the air will enter into that rectangular glass slab, it will bend towards the normal, and after bending towards the normal, when it will emerge out from the boundary of the rectangular glass slab, the refraction will take place 2 times in this case. The first refraction will take place at the boundary of the air and at the boundary of the glass slab, between air and the glass slab. The second time it will again take place at the outer boundary of the glass slab, between the air and the glass slab. In both the cases, one time the light will bend towards the normal, other time the light will bend away from the normal. So the ray, this ray is known as the ray which is incident. The incident ray is known as incident, and the point where it will touch the boundary of the medium, we will make a normal out there, and the point where it will touch the other boundary, there is the outer boundary where when the ray is going to leave, light ray is going to leave, we will form another normal. This is normal N1, this normal is known as normal N2, and the light, when will light emerge out, it is known as emergent ray. In this case, we will see that angle of incident will be equal to the angle of emergence. Also we will see when the angle of incidence and angle of emergence will be equal, the emergent ray will be equal to the incident ray, the original path of the incident ray. The dotted line here represents the imaginary path of the incident ray. If the light had not been bended, the path would be like this, but due to the refraction, the path is now like this. There is a certain distance between both the light rays. So this distance between both the light rays, between the incident light ray and the emergent light ray, is known as lateral displacement. It is known as a lateral displacement. It can be represented by x. So now we are going to perform this experiment. There are the various apparatus which will be required for this experiment are, सबसे पहले जो है हमारे पास जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इस एक्सपेरिमेंट को जो है करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ड्राइंग बोर्ड चाहिए। ड्राइंग बोर्ड के बाद जो है हमें जो है ड्राइंग पिन्स भी चाहिए। तो ड्राइंग पिन जो है वो इस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ड्राइंग पिन्स। ड्राइंग बोर्ड चाहिए, ड्राइंग पिन्स चाहिए। तो ड्राइंग बोर्ड सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक अ ड्राइंग बोर्ड एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। ड्राइंग बोर्ड लेना है, उसको टेबल पे प्लेस कर दिया। दूसरा है फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन द बोर्ड यूजिंग पिन, ठीक है। तो वाइट शीट जो है वो फिक्स करनी है इस पेपर की जो कि वो यूजिंग पिन्स को यूज करते हुए जो है वाइट शीट जो है वो क्या करनी है, वो टेबल के ऊपर फिक्स करनी है। फिक्स करने के बाद जो है थर्ड स्टेप जो हमारा होगा, ठीक है, प्लेस अ ग्लास स्लैब नियरली इन द मिडल ऑफ द वाइट शीट। हमने जो है ग्लास स्लैब जो है, ये हमारी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो ये हमने जो है प्लेस करनी है नियरली मिडल, मतलब मिडल में, ठीक है, बीच में, लगभग बीच में जो है हमने इसको जो है करना है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा फोर्थ स्टेप जो हमारा जो है
जो है फोर्थ स्टेप है ड्रा द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद द पेंसिल। अब स्लैब से की जो हमने पेंसिल लेनी है, पेंसिल से क्या करना है, ये चीज़ को ध्यान रखना कि पेंसिल जो है शार्प हो आपकी। उसके बाद हमने जो है इसकी आउटलाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो है ग्लास स्लैब जो है वो हिले नहीं, ठीक है। तो हम जो है इसकी आउटर बाउंड्री जो है उसको कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर ली ड्रा, हमारी जो है आउटर बाउंड्री जो है होगी ड्रा। अब हमने रिमूव द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब हमने क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है। तो रिमूव करने के बाद जो है अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, अब हम जो है अब एक पॉइंट जो है वो मार्क करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो अब हम जो है आउटलाइन ड्रा कर लेंगे। आउटलाइन जो हमने ड्रा की है ना, इसको उसको मार्क कर लेंगे। हम मार्क कर लेंगे ए बी सी और डी। तो ये पॉइंट हमने क्या कर लिए, मार्क कर लिए। ये पॉइंट थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है। तो इसको हम जो है मार्क कर लेंगे। एक सेकंड। अच्छा, तो मार्क करने के बाद जो है इस पॉइंट को ए बी सी डी जो है ये हमारे रेक्टेंगुलर स्लैब जो स्लैब है इसकी जो आउटलाइन जो है यहाँ पर मार्क हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब ऑन द लाइन ए बी लाइन पे जो है एक पॉइंट ओ मार्क करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ओ मार्क कर देंगे। सपोज करते हैं हम यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ओ है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ओ, यहाँ पे कर लेते हैं हम पॉइंट ओ मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट कर लिया ओ मार्क। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट ओ एंड ड्रा नॉर्मल O1 N1, और हमने जो है नॉर्मल ड्रा करनी है। नॉर्मल जो है 90 डिग्री की जो लाइन जो है वो पॉइंट ओ से जो हम ड्रा करेंगे। प्रोटेक्टर लेंगे सबसे पहले हम जो है, उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद जो है 90 डिग्री पे जो है मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद जो है हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है एक नॉर्मल जो है उसको ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जो है इसका नाम है N1 O1 N1, इसको नाम दे देंगे, इसको नेम कर देंगे O1 N1। अब O1 N1 जो है नेम करने के बाद जो है O1 N1 जो है नेम करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हमारी ये जो लाइन जो है नॉर्मल जो है वो ड्रा हो गया है। उसके बाद जो है ड्रा अ लाइन PQ, ड्रा अ लाइन PQ एट O1 मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री, ठीक है। तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले जो है हम 40 डिग्री एंगल जो है मार्क करते हैं। यहाँ पे 40 डिग्री एंगल कहाँ पे बनेगा, तो 40 डिग्री जो है यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो एक जो है सबसे पहले 40 डिग्री हमने मार्क कर लिया। फिर जो है जो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से जो है इसको मार्क कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क किया, ये हमारा जो है एंगल हो गया 40 डिग्री मार्क हो गया हमारा। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो पॉइंट PQ मार्क करेंगे, P और Q। तो कोशिश ये करनी है कि P और Q के बीच में जो है, P और Q जो है हमारा उसके बीच में जो है लगभग 10 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास स्केल से अगर जो है हम मेजर करने की कोशिश करेंगे P और Q को, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो लगभग जो है, आप यहाँ पर ले लो, ये B है आपका, यहाँ पे ले लेते हैं Q, ठीक है, 7 पे ले लेते हैं, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लगभग डिस्टेंस कर लेते हैं। इसको यहाँ से रब कर लेते हैं Q को, ठीक है। और यहाँ पे जो है मार्क कर दिया Q पॉइंट, और कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, वो उन्होंने बोला कि 10 सेंटीमीटर जो है एटलीस्ट होना चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर नहीं है, फिर भी जो है हम 7 सेंटीमीटर का जो है ले लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। उसके बाद पिन को जो है हम प्लेस कर लेंगे यहाँ पे एक Q पॉइंट पे। उसके बाद जो है P पॉइंट जो हमारा, उसके ऊपर भी एक पिन जो है वो क्या करती जाएगी, प्लेस कर दी जाएगी P पॉइंट और Q पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे हमने तो पिन प्लेस की, तो वर्टिकली 2 पिन जो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो हमारा ये वाला स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो हमने क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ जो हमने क्या करनी है कि अब पॉइंट जो है वो तो हो गया हमारा, जो है मार्क हो गया है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमने जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ड्रा कर लिया है। अब हम जो है ग्लास स्लैब जो है उसको जो है फिर से रखेंगे इसके ऊपर। एग्जैक्टली जो है ग्लास स्लैब जो है वो हम उसको फिर से रखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ग्लास स्लैब को रखा, इसको हमने अच्छे से एक बार जो है वर्टिकली जो है फिक्स कर लिया, ठीक है, ताकि जो है सीधे जो हम इसको फिक्स कर देंगे ताकि कोई जो है डेटा जो है ये ना रहे, ठीक है। तो P और Q पॉइंट पे सीधा हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब हम जो है ग्लास स्लैब जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे,
कि नीचे से जो है यहाँ से जो है एक सेकंड इसको आई लेवल से जो है हम इसको जो है क्या देखेंगे, पिंस को देखेंगे। और पिंस जो है वो क्या होनी चाहिए, लगभग जो है ऑलमोस्ट जो है एक ही पिन दिखनी चाहिए हमें, एक से ज़्यादा पिन जो है नहीं दिखनी चाहिए। तो हम जो है 2 पिंस जो है ले लेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो 2 पिंस लेने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जहाँ पे इसकी आउटलाइन है इसके बीच में रख के, इसके बीच में रखने के बाद, ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा, उसमें रखने के बाद आई लेवल से जो है हम इसको देखेंगे। जहाँ पे हमें लग रहा है कि पिन जो है, जहाँ पे दोनों पिन जो है वो हमें एक ही पिन दिखाई दे रही है, वो इंसिडेंट है एक ही लाइन पे, हम वहाँ पे जो है पॉइंट को, वहाँ पे जो है 2 पिन जो है इसको मार के फिक्स कर लेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पिन को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पिन को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पिन जो है यहाँ पे रेक्टेंगल ग्लास होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल ग्लास जो है वो ना हिले। लेकिन फिर भी जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पिन जब हमने फिक्स की, उसके बाद हमने एक और पिन जो है वो इसी लाइन के जो है कोइंसिडेंटली यहाँ पे हम इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो फिक्स करने के बाद जो है हम इसको इस तरीके से यहाँ पे जो है फॉर्मली अच्छे से जो है इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो लेकिन वैसे जो है गलती हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस जो है थोड़ा कम है इसके बीच में, लेकिन ठीक है फिर भी। तो हमने जो है यहाँ पे जो है 2 पिंस जो है इसको फिक्स कर लिया है। अब हम एक बारी फिर से एक बारी बैरी क्रॉस चेक करने के लिए, जो है वेरीफाई करने के लिए देखते हैं कहीं पे कहीं से गलती तो नहीं है कोई। तो लेट मी चेक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारों पिन जो सब ये जो है पिन है, ये सब पॉइंट्स जो है कोई इंसिडेंट है, ठीक है। तो हमने जो है ये जो पॉइंट जो थे PQ पॉइंट मार्क किया था, हम पिन को रिमूव करेंगे। उसके बाद पेंसिल से जो है ये जो पॉइंट जो थे इनको R पॉइंट और इस पॉइंट को जो है हम S पॉइंट का नाम दे देंगे, ठीक है, R और S पॉइंट। फिर हम जो है एक लाइन जो है वो यहाँ से ड्रा कर लेंगे, लाइन जो यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। जैसे हमने लाइन यहाँ से ड्रा की, फिर हम यहाँ पे जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को, पहले वाला पॉइंट जो था वो O1 था, तो इस पॉइंट को हम जो है क्या मानेंगे, O2 मानेंगे, O2 सपोज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर लेने के बाद जो है यहाँ से एक जो है नॉर्मल जो है 90 डिग्री का जो है वो ड्रा कर दिया जाएगा। तो ये इसी पॉइंट से जो है जो हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो हाँ इस तरीके से जो हमने क्या कर दिया, हमारा एक नॉर्मल जो है वो ड्रा हो चुका है। अब इसके बाद जो है नॉर्मल ड्रा करने के बाद हम इस लाइन को जो इंसिडेंट थी और इस लाइन को जो एमरजेंट रे है हमारी, इन दोनों को जो है हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो है ये जो रे फॉर्म हुई, जो हम देख रहे थे कि इंसिडेंट रे जो थी, ये जब इस मीडियम के अंदर एंटर हुई, ग्लास स्लैब के अंदर जैसे एंटर हुई, तो थोड़ी जो है रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है जब इस मीडियम से जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है, ये जो नॉर्मल है इसका नाम हमने N2 रख देते हैं। तो O2 N2 से जो है नॉर्मल से जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। तो इन पिन्स को रिमूव करेंगे हम। इन पिन को रिमूव करने के बाद हम एक चीज़ जो है वो देखेंगे कि हमारा जो है ये चीज़ चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारा यहाँ पर जो एंगल है वो है 40 डिग्री, जो कि हमने जो है खुद बनाया था। तो ये वाला एंगल जो है वो हमने पिन्स जो है फिक्स करके जो है हमने बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम जो है प्रोटेक्टर को अच्छे से रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या चीज़ देख रहे हैं, ये एंगल भी हमारा कितना है, 40 डिग्री ही है। तो ये एंगल भी 40 डिग्री है और हमारा ये एंगल भी कितना है, 40 डिग्री। अगर हम इंसिडेंट रे को जो है अगर हम एक्सटेंड करते हैं, अगर हम इंसिडेंट रे को जो है एक्सटेंड, मेरा यहाँ पे जो है ग्लास स्लैब थोड़ा मैंने साइड लेना चाहिए था, फिर भी अगर हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करते हैं, अगर ये अनडिविएट होती, डिविएट ना होती, तो इंसिडेंट रे जो थी वो इस प्रकार जो है उसका पाथ जो था वो ऐसा था। तो ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था अगर वो रिफ्रैक्ट ना होती। तो ये जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है इसको हम बोलेंगे एमरजेंट रे। कौन सी रे बोलेंगे, एमरजेंट रे। तो एमरजेंट रे जो है हमने एक चीज़ नोटिस की कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ एमरजेंस के इक्वल है, और दोनों कितने हैं, 40 डिग्री के इक्वल हैं। और एक और चीज़ नोटिस की हमने कि इंसिडेंट रे और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस को दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 40 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 डिग्री होगा। इसका मतलब कि हमारी इंसिडेंट रे जो है अगर वो अनडिविएट होती, इंसिडेंट रे हमारी अनडिविएट होती, तो एमरजेंट रे की जो है उसके क्या होनी थी, वो पैरेलल होनी थी। तो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये चीज प्रूव हो गई। दूसरी चीज क्या प्रूव होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ जो है एमरजेंस जो है एंगल ऑफ एमरजेंस के इक्वल है। और तीसरी चीज जो है, हम ये हमारा जो है ये जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल है हमारा, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कितना है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे अभी। ये हमने नॉर्मल के साथ जो फिक्स कर दिया, उसके बाद जो है हमारा जो है एंगल है वो हो चुका है नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो हमारा एंगल है यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, हमारा एंगल है यहाँ पर तो यहाँ पे हमारा एंगल हो गया 60 डिग्री। कितना एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। कितना एंगल 60 डिग्री। तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस दोनों के एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो हमने नोटिस कर लिया है, तो जितना जो है हमारा एंगल जो है, जितना जो है हमारा एंगल जो है वो घटता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। जितना हमारा जो है जब मीडियम जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद एंगल जो हमारा उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस के इक्वल है। तो ये हमारा थी रिफ्रैक्शन, ठीक है, यूजिंग ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसकी जो है बदौलत, जिसकी जो है वजह से जो हमने जो है रिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था हमारा, ठीक है, तो वो हमने क्या कर दिया है, आज कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार जो है आपने एक्सपेरिमेंट करना है, प्रिकॉशंस, डिटेल और हर अलग 3 बार जो है अलग अलग एंगल्स लेने हैं, एक बार 40 डिग्री, एक बार 30, जो आपकी चॉइस है वो आप ले सकते हो, और इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करना है। तो आज के लिए धन्यवाद। ये थी हमारी आज की क्लास।